Okay friends, in last class we have studied about Python's introduction. Okay. In this class we will little bit start a quick revision of last class. 10th man, And little bit revision, fast revision, because last time we have not taken a recording I have failed, so that's why I will start from the start. Okay. So students, have you read the things which I have told you from the book or revised anything from the class? Yes or no? Any of you can tell? Sanjana, Harsh, anyone can tell what I have reached just in last class? Not remember? Not remember? बोलिए. section है ये क्या बेटा? बोलिए बेटा. चलिए let's start from starting. Okay. चलो. So sir, now listen. Are you able to see my screen? Python innovation. Python introduction. ठीक है. हमने आपको बताया था I told you that we will start from the things like in order to provide inputs. Okay. We have Python is a very easy language that I have told you. When we give the instructions in groups or in single statement, in that case we can use Python also. Many languages are there, but they have very vast. The statements are very long. Okay, lot of statements required for a single program. In Python, there is a very easy in a very easy manner we can go through it. Okay. So now let's start with the basic Python character set. Okay. Python, what is Python character set? What is meaning of character set? If I will talk about character set, then character set अगर हम बात करें कि if I will talk about character set, then character set हमने कहा are you able to see my both screens are you able to see or not? Okay. Character set. Character set हमने बोला कि suppose हमने क्या लिखा A to Z. ठीक है. A to Z means अगर हम small a to z लिखें या फिर हमने लिखा 0 to 9 लिखें, anything which will write like in special character like minus, braces, percent, slash, these are the special characters. At the rate. Okay, these special symbols also are character set. When we'll give the space, like हमने suppose लिखा Gaurav space Pandey. In computer this is also a space, means अगर हम बात करें कि this is also a space.
ठीक है, here is it is a space, so that is also a character set. Means when you will think about a character set, if you will think about a anything which you will use, that is a character set in writing, like assembly language, new line, enter, ASCII code, Unicode, whatever the thing you will use in characters, that is a character set. Okay. Now see, तो character set क्या है? The instructions which we will give to the computer, that is a set of character. Okay. Sorry. Now, तो ये कैरेक्टर सेट्स होते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, वट एवर यू विल टाइप इन कंप्यूटर, इन एनीथिंग इन सिंपल वे, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर सेट. ठीक है. चलो, now if you talk about digits, ठीक है, now listen, तो डिजिट्स, अब हमने बात की थी ASCII कोड, लास्ट क्लास में ASCII कोड क्या होता है, याद है? What is ASCII code? ASCII कोड बताओ क्या होता है? ASCII बताया था मैंने. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद है? ऐसे ही ISCI स्काई भी होता है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है. तो जो भी चीजें हम टाइप करते हैं, चाहे हम लिखें ए, हमने लिखा ए, एक ASCII कोड होता है 65, ठीक है, बी का होगा 66, ठीक है, दैट इज कैपिटल बी. अगर हम इसी की बात करें तो 65 में आप 65 में क्या करें, 25 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 90 होगा या नहीं होगा? 90 आएगा ना. तो दैट मीन्स A to Z मीन्स कैपिटल A to Z is a ASCII code for A to Z, capital A to Z. ठीक है, 65 to 90. सेम एज अगर हम स्मॉल A to Z की बात करें, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 96 to 121, दैट इज ए स्मॉल. इनके बीच में और इनके बाद और आखिर में डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इट विल रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग तो कन्वर्जन ASCII कोड्स. ठीक है, तो ASCII कोड्स अब कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं. हाउ? ठीक है, अब कैसे बात करते हैं बताता हूँ. जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़, हमने एक कैरेक्टर लिया, जैसे हमने प्रेस किया ये हमने टाइप किया कीबोर्ड पे, इट विल कन्वर्ट टू 65. अब ये किस में कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में, इन मशीन लैंग्वेज. ओके, अब मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगा ये बताता हूँ. जैसे हमने लिखा 65, ठीक है, तो 65 को हमने क्या किया, 65 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ 1 बचा. फिर हमने किया 2 1 2, 2 6 12. हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं 2 से डिवाइड, वो भी बताता हूँ. ठीक है, 0, यहाँ भी 0 आएगा, 2 8 16 हो जाएगा. ओनली बाई 2 यू हैव टू डिवाइड. 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, और यहाँ कितना बचा 1. अब हम इसको रिवर्स कर देंगे उल्टी तरफ.
तो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 and 1. This is the ASCII code. This is the basic machine language code for equal to A. अगर हम A is equal to 65 is equal to machine language में क्या होगा 1 0 0 0 0 1. So that is the basic requirement of this is the conversion from assembly language to machine language. अब assembly language क्या है, ये हमारा assembly language है और इसको convert करते करते क्या हुआ हमारा machine language में. ये क्या है assembly language और उसको convert किया ASCII code में, ASCII code से convert हुआ machine language में. समझना? तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं. अब कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ. बेसिकली द नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिक 4 कोड्स. मतलब 4 नंबर सेट्स नंबर सिस्टम होते हैं. थोड़ा सा नंबर सिस्टम बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा. याद होगा क्लास 7 में पढ़ा होगा. पढ़ा है? याद है? लिसन, कोई बोलो भाई, याद है नंबर सिस्टम? फर्स्ट मैंने बताता हूं बाइनरी. जो हमने बताया बाइनरी नंबर मीन्स 0 and 1. सेकेंड व्हाट ऑक्टल नंबर दैट इज 0 to 7. इसमें 8 नहीं आता, बताता हूं देखिए. 3 डेसिमल नंबर. ये क्या होता है 0 to 9. इसमें 10 नहीं आता. 4 क्या होगा हेक्सा डेसिमल नंबर. हेक्सा डेसिमल नंबर दैट इज 0 to 9 and 11 to 16 15 सॉरी 15. ठीक. अब लेकिन हम इनको जो लिखते हैं A to F लिखते हैं. जब हम लिखते हैं इनको तो A to F लिखते हैं. बताता हूँ इनका ऐसा क्यों होता है. इसमें कुछ नंबर्स क्यों नहीं है. द बेस यू नो बेस व्हाट इज द बेस ऑफ ईच. मतलब अगर हम बाइनरी डिजिट्स की बात करें तो बेस इज 2. ऑक्टल की बात करें तो बेस इज 8. हेक्साडेसिमल की बात करें तो बेस इज 10. हेक्साडेसिमल की बात करें तो बेस इज 16. मीन्स आप कैसे पहचानोगे कि द नंबर विच यू हैव गिवन दैट इज hexadecimal, decimal or any other number. Okay, let's try this. हमने क्या किया, we will take like this. Suppose that हमने लिखा कि 27. Okay, अब आपको बताना है कि what is this is octal or this is binary, this is decimal और दिस इज हेक्साडेसिमल. अब देखो ऐसे कैसे पहचानेंगे. दिस अगर किसी नंबर के आगे सपोज दैट x लिखा हुआ है, इसका अगर बेस 2 है देन दैट इज बाइनरी नंबर. ओके. इफ द नंबर इज 8, okay, then it is octal number. If the number is 10, then it is decimal number. If the number is 16, then that is a hexadecimal. In this manner, you can understand that these are the numbers which you will get. ठीक है, ये प्रोसेस होती है. ऐसे इसके बेस, इसको हम इन नंबर्स को these numbers which I have told you, इसको हम बोलते हैं बेस. और एक और नाम से बुलाते हैं that is called radix. क्या कहलाते हैं? radix. ठीक है, तो मैं these numbers are called radix. Clear? all of you clear? कोई तो बोल दो.
समझ में आया नहीं आया? समझ में आया सभी को? प्रखर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, ठीक है? तो ये नंबर समझ में आ गए। इनको नंबर्स को दिमाग में रखना कि दीज नंबर शुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है? और ये इसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और इन्हीं के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो डेसिमल नंबर है हमारे, जो डेसिमल नंबर है हमारे, डेसिमल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर, इनका बस इतना दिमाग रखना पड़ता है कि ये 0 to 9 मैंने बोला और ये 0 to 9 एंड 11 to 15, क्योंकि इसका जो बेस है वो है 16 और इसका बेस जो है वो है 10। दैट्स व्हाई हियर 10 इज नॉट अवेलेबल एंड हियर 16 इज नॉट अवेलेबल। बट व्हेन यू विल राइट, आपको कभी ऐसा नंबर देखने को मिल जाए A9 B9B 9F ऐसे करके, तो दैट मीन्स इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है? ये नंबर्स हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होंगे, ठीक है? बनाया तो इतना दिमाग में रखना। चलो अब आते हैं पाइथन पे, ठीक है? अब बात करते हैं पाइथन के। तो हमने बताया जो कैरेक्टर सेट है दैट इंक्लूड्स लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, टैब, कैरेज, everything whatever you require. ASCII and Unicode. Unicode is a special language, special word. Source code भी होता है, Unicode भी होता है, that will convert. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? Now listen. Sorry, वॉइस नहीं आ रही। कोई क्या कुछ पूछ रहा है? बोलो, कोई कुछ पूछ रहे हैं? चलो कोई नहीं। टोकन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोकन की, ठीक है? ये टोकन्स क्या हैं? हम लोगों की लैंग्वेज हमने बताया था, एक बार मेरी इस क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? हमने जो टोकन्स बताए थे, टोकन्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम जो भी लिखते हैं, सपोज दैट आई हैव राइट हियर आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है? अब इसका मतलब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाएगा, ठीक है? हिंदी में बोला जाएगा तो वो लिखा जाएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है? तो बंगाली में कुछ और बोला जाएगा, संस्कृत में कुछ और बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको, ये टोकन्स, इनके जो लैंग्वेज, जो कीवर्ड्स जो हमें पता होते हैं, हमारे माइंड में हैं फॉर एवरी लैंग्वेज। लाइक हिंदी अब बोलते हैं तो उसके लिए अलग हमारी लैंग्वेज है, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक संस्कृत, वी कैन स्पीक फ्रेंच। This is these are the tokens which we have created in our mind. Same as computer has also some specific words, some specific small letters, small numbers. वो सारे tokens कहलाते हैं। और उनका यूज़ कैसे करते हैं? कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर हम इसकी बात करें नंबर्स की, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सबसे पहले अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स आर द बाय डिफॉल्ट वर्ड्स, ठीक है? ये बाय डिफॉल्ट वर्ड्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में फीड किए जाते हैं, ठीक है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीड होते हैं, फीड आता बाय डिफॉल्ट, उनको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है? और ये कीवर्ड क्या काम करता है? लाइक हमने जिसे यूज करते हैं, इसमें लिखा आई, ठीक है? इफ, प्रिंट, ठीक है? एल्स, स्विच,
डू, वाइल, फॉर, जो इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करते हैं. The words which is the smallest entity which is by default feeded in the computer library, by default feeded in the programming library. These keywords are called these words are called keyword. ठीक है. These are the, they have a specific meaning. ठीक है. वो जो specific meaning जो बताते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? Keywords कहलाते हैं. इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की. ठीक है. आइडेंटिफायर्स आर द वर्ड डिफाइंड बाय द यूजर बाय हेल्प ऑफ कीवर्ड. ठीक है. लाइक हमने लिखा अपना नाम सपोज दैट हमने लिखा इंटीजर. अगर हम लिखते हैं कोई इंटीजर ए, तो ए इज अ कीवर्ड. ठीक है. इसको हम वेरिएबल भी बोलेंगे. ठीक है. ये अदर लैंग्वेज में पाइथन में इसका यूज नहीं होता. पाइथन में डायरेक्ट लिखेंगे ए इज इक्वल टू 20. तो ए इज अ कीवर्ड आइडेंटिफायर एंड 20 इज अ कांस्टेंट. ठीक है. इसे हम बोलेंगे वेरिएबल, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट. ठीक है. सेम एज अगर हम बात करें, लिखा हमने कि प्रिंट ए, तो यहाँ पे प्रिंट जो है वो है क्या है? कीवर्ड है. एंड ए इज अ वेरिएबल. ठीक है. ए इज अ आइडेंटिफायर, दैट इज द नेम. ओके. सो इन दिस वे यू कैन टेल दैट इज द आइडेंटिफाइंग के रूल्स. अभी हम लोग बात करते हैं रूल्स वगैरह पे भी. ठीक है. तो इसके बाद ऑपरेटर्स, जैसे हमने ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस ऑपरेटर्स डिफरेंट इनके बीच में जो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होते हैं. ठीक है. उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. लाइक हमने लिखा ए और बी. ठीक है. तो हमने लिखा ए प्लस बी, तो प्लस इज अ ऑपरेंड. ठीक है. सेकंड ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया. ठीक है. हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी, तो हियर इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है. ये लॉजिकल ऑपरेटर है. ए इज इक्वल टू बी कंडीशनल ऑपरेटर हो गया. ये हमने लिखा ए इज लेस ग्रेटर देन बी, लॉजिकल हो गया. ठीक है. कंडीशनल, लॉजिकल. ठीक है. तो इस तरीके के ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट जिनका हम ऑपरेंड्स के साथ यूज करते हैं. ठीक है. समझे? पंचुएटर्स सबने इंग्लिश पढ़ी होगी. ठीक है. पंचुएटर्स सभी ने, एवरीवन नोज अबाउट इंग्लिश. तो उसमें क्या हम लोग लिखते हैं? हमने लिखा हेलो. ठीक है. कॉमा द्वारा फुल स्टॉप. ठीक. हिंदी हम लिखते हैं अपना नाम बताइए. हमने क्या लिखा? पूर्ण विराम हिंदी में. ठीक है. सेम एज हमने लिखा इंग्लिश में डू दिस. ठीक. इज आई एम ह्यूमन. सा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है. ठीक है. इज आई एम ह्यूमन हो सकता है, इज आई एम हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन मतलब इस तरीके के कोई ये जो है भावनाओं को समझो. दैट इज कॉल्ड अ पंचुएशन. ठीक है. फुल स्टॉप, कॉमा. ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हम लोग यूज करते हैं पंचुएटर्स. ठीक है. वो भी हम बात करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट. ये देखो कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आई हैव प्रोवाइड्स अ स्पेशल मीनिंग इंटरप्रेटर. ठीक है. दीज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल फंक्शंस. ठीक है. यहाँ हम बता चुके हैं अभी. दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम और एनी अदर नेम. तो हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे मैंने कुछ अभी यहाँ पे लिख के बताए भी थे. दीज आर द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द बाय डिफॉल्ट वर्ड्स that already defined in a computer system. Identifiers पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे. ठीक है. These are the building blocks program and are used to give names different parts of the blocks. ठीक है. इनको हम variables बोलते हैं. variables. ठीक है. variables बोलेंगे. objects, classes, functions में हम इनका यूज करते हैं. Identifier may be combination of letters and numbers. ठीक है. जैसे हमने कहा कि आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं. आइडेंटिफायर कौन-कौन से होते हैं? जैसे हमने इसके कुछ रूल्स हैं. रूल्स क्या हैं? आई हैव टोल्ड यू दैट
अगर हम एज लिखते हैं और यहाँ पे लिखा एज, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, ये हमारा ये डिफरेंट होगा और ये डिफरेंट होगा, बिकॉज इट इज ऑल इन अपर केस एंड इट इज इन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड रिमेनिंग इज इन स्मॉल, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। हमें लिखा एज इज इक्वल टू 18 और फिर यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे प्रिंट, अगर सपोज इसका 28 कर दो, ठीक है, प्रिंट एज और फिर लिखा प्रिंट एज, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 18 एंड इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 28, दैट इज कॉल्ड अ करेक्टर सेट, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दो। अब इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, रूल्स क्या हैं बात में बताऊं। रूल्स क्या हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हम केवल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और नंबर्स के साथ भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने लिखा A9, D10, हमने लिखा num 10, इन दिस वे यू कैन डिफाइन द वेरिएबल, ठीक है। आप नंबर्स का यूज करके और कैरेक्टर्स का यूज करके भी आप डिफाइन कर सकते हो। सेम एज इफ यू विल राइट लाइक सब्सिक्वेंटली हमने लिखा कि 0, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं A to Z अगर बात करें, या A कैपिटल A to Z और 0 to 9, एनी नंबर यू कैन यूज ड्यूरिंग टू राइटिंग द प्रोग्राम, ओके, एनी नंबर यू कैन यूज टू राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, वट एवर प्रोग्राम यू वांट टू राइट you can use this type of numbers or characters. Now second thing is that how you will define the variable, how you will tell to anybody that the variable is correct or not. Let's check. The procedure is when you will give like A is equal to 18, it's okay, it is correct. हमें लिखा 9A is equal to 18, that is wrong, okay. हमने लिखा 1 1 2 is equal to 20, that is also wrong. If I will write underscore, we can use underscore also in between. Rule में क्या है, the first letter, first number, first variable, first character not should be a marriage, ठीक है। हमने लिखा num 10, that is correct, but num 10 num is wrong, ओके। सेम एज सपोजर हमने लिखा कि num underscore 10, that is also correct. num underscore 1 is equal to 20, that is also correct, ठीक है। हमने लिखा 1 underscore num, that is wrong, समझ आया सबको, that is called identifier। देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेम एज सपोजर अगर कोई आपने कीवर्ड ले लिया है, इफ यू हैव यूज कीवर्ड लाइक प्रिंट इज इक्वल टू 20, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। कुछ भी अगर ऐसा लिखा है तो दैट इज रॉन्ग एंड यू कांट यूज एनी कीवर्ड ड्यूरिंग टू डिफाइन अ आइडेंटिफायर, ठीक है, समझ। नाउ आगे बात करते हैं, समझ आया था, कोई क्वेश्चन करिए पूछो, आस्क वेरी फैनी, बोलो बेटा। आस्क वेरी फैनी, नो। सूर्यवर्धन, सूर्यवर्धन, हुसैन जोया अजमल, हुसैन जोया अजमल, समझ आया कुछ, लेसन और नॉट।
little bit. This is the revised class which I have taken last. Okay. Before that class, before this class, I have uploaded the class on YouTube. You can check. Okay. You can link up this class from that class. Okay. Okay. Now. Okay, so identifier is the names which we will define to the computer, to the program, to the any of our statement. Like suppose an example लेते हैं, हमें लिखा I is equal to 20, B is equal to 30, sum is equal to I plus B, print I plus B, print sum. Okay, now here चलो इसको मल्टीप्लिकेशन कर, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो. This is a multiply. We use asterisk as a multiplication. Okay. Now here in this value, in this थोड़ा सा नहीं है, अभी इसको नहीं करते हैं, बहुत हाई लेवल का हो जाएगा. थोड़ा सा चेंज करते हैं पूरा. हमने लिखा int I, print I, print B. ठीक है. Now here अब बात करते हैं what is the keyword in this, what is, these are the identifiers. ठीक है. I, B, these are the identifiers. Print is a keyword. इनको क्या कहेंगे हम लोग? कीवर्ड कहेंगे. ये क्या है? आइडेंटिफायर. और हम कह सकते हैं वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल नेम. These are the constant. ठीक है. You can change it in between the value. अब अगर हम आइडेंटिफायर और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल्स आर द नेम. ठीक है, इनको हम वेरिएबल्स एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं. बट वेरिएबल्स कीप एड्रेस ऑफ द वैल्यू, मतलब वेयर द 20 विल स्टोर, ये कहाँ पे स्टोर है, द एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है, वो ए होल्ड करता है, आई होल्ड करता है. मीन्स आई में 20 का एड्रेस होगा. आप ऐसे समझ लीजिए, देयर आर द ब्लॉक्स. वन ब्लॉक इज वेरिएबल वैल्यू एंड वन ब्लॉक इज एड्रेस. तो एड्रेस होल्ड करता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल विल स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वैल्यू. ठीक है. चलो अब आगे बात करते हैं. लिटरल्स और वैल्यूज, वही बात अभी हम समझा रहे थे. लिटरल्स आर ऑफन कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है, हमारा कांस्टेंट होते हैं ये. ठीक है, इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, दीज आर द कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होते हैं, इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. तो लाइक स्ट्रिंग, सबसे पहले हम लिटरल्स की बात करते हैं. सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या है? लाइक हमने लिखा पंकज इज अ स्ट्रिंग. न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है. दैट इज इन द डेसिमल फॉर्म, दैट इज इन द नंबर फॉर्म, दैट इज इन द क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे फंक्शन जो यूज होते हैं, मतलब जिसमें आई यूज करते हैं, सारे फंक्शन ही होते हैं. ठीक है. बूलियन लिटरल्स ट्रू और फॉल्स. बूलियन इज अ ट्रू और फॉल्स, मीन्स दिस इज द ओनली यूज ट्रू एंड फॉल्स. स्पेशल लिटरल्स जो होते हैं जैसे इनमें नन, जीरो वैल्यूज होती हैं. अब लिटरल्स हैं क्या, ये भी अभी मैंने बताया कि द नंबर्स कांस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं, जो डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स. यू कैन से द कांस्टेंट वैल्यूज, द वैल्यूज आर द लिटरल्स. ठीक है. इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस पर, समझ आ जाएगा. नाम से हम बोला स्ट्रिंग. ठीक है. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप बेसिकली विच विल यूज टू इनपुट द कैरेक्टर सेट. ठीक है. लाइक हमने लिखा माय नेम इज गौरव, सो आई हैव रिटन गौरव, तो कैरेक्टर. ओके. हमें लिखा ए, कैरेक्टर. हमें लिखा
GAU231, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर्स, मिक्स कैरेक्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। इसमें अल्फाबेट भी हैं और न्यूमेरिक्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो नेम से डेफिनेट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, स्पेसेस भी हैं, 3 स्पेसेस आर देयर, अल्फाबेट्स भी हैं, यू कैन एंटर सेंटेंसेस, यू कैन एंटर अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, यू कैन एंटर द स्टेटमेंट्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, इन पाइथन यू कैन डायरेक्टली, लाइक हमें लगा डिफाइन किया, पाइथन में पता है सबसे अच्छी चीज़ है नो डेफिनेशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस टाइप का डेटा इनपुट करना है। लाइक हमने लिखा a इज इक्वल टू 23, वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, न्यूमेरिक लिटरल हो गया। हमने लिखा a इज इक्वल टू राजश्री, क्या हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। हमने लिखा a इज इक्वल टू 0, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। हमने लिखा a इज इक्वल टू a कैपिटल A, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, इनमें हम कैसे किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं थोड़ी सी। व्हेन यू विल यूज स्ट्रिंग मीन्स, लाइक हमने लिखा a इज इक्वल टू, इफ यू वांट टू इनपुट स्ट्रिंग देन यू हैव टू व्हाट, डबल कोट्स का आपको यूज करना है, सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, these are the punctuators which you will use to define a string। like मैं लिखा, अभी हमने लिखा था, मैं लिखा था यहाँ पे a is equal to Gaurav, तो this is a string। ठीक है, b is equal to 20, तो यहाँ पे हमने कोई भी डबल कोट्स नहीं लिया है, क्यों, there is a number, direct number। if you can give like b is equal to double quote 20, then it is converted into a string। now we can't add this number। अगर हमने लिखा a is equal to b is equal to 20 और c is equal to 20 like this, तो आंसर पता है क्या आएगा। अगर हम लिखा b plus c, तो वैल्यू जो इसकी वैल्यू आएगी that is 20 20, cause it is also a string, it will come first, and then this is also a string, it will come second after that value। तो in this way also you can add strings। ठीक है, तो हमारे लिए स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग में दोनों में a lot of difference between both। ठीक है, समझ आया, यहाँ पे समझना है बोल देना। नाउ अब थोड़ी सी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग देखो हमने ये सारी चीजें समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी जरूर आगे साइड स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी combination of letters, numbers and special numbers, right? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देखो ये बता चुका हूँ, ट्रिपल कैरेक्टर्स, डबल, ठीक है, और सिंगल। ठीक है, इट मीन्स सिंगल कोट मैंने बताया तुमको, डबल कोट में मैंने बताया, दीज आर द वैल्यूज विच विल यूज। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे सिंगल कोट, सिंगल लाइन, जैसे हमने लिखा यहाँ पे देखो सिंगल लाइन, स्ट्रिंग होती है बेसिकली दो तरीके से, सिंगल लाइन और डबल मल्टी लाइन के तरीके से यूज होती है। हमने लिखा टेक्स्ट, अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट आपको यूज करना है तो देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट यूज किया है, सी ओवर हियर, वर्ड यहाँ पे डबल कोट यूज किया है, यहाँ पे भी सिंगल कोट यूज हुआ है। ठीक है,
नाउ ट्रिपल कोट फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए भी हम सिंगल कोट और डबल कोट यूज कर सकते हैं. दैट इज हाउ सिंगल कोट एंड देन प्रेस स्लैश फॉर मल्टी लाइन एंड देन आफ्टर टेक्स्ट एंड ट्रिपल कोट फॉर मल्टी लाइन. यहाँ पे आपको स्लैश नहीं यूज करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग ट्रिपल कोट फॉर मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लाइन कैरेक्टर्स. लाइक हमें जैसे कुछ भी लॉन्ग सेंटेंसेस लिखना है तो दैट इन दैट केस यू कैन यूज, हमने लिखा आप ए इज इक्वल टू हेलो वर्ड. ठीक है, तो हमें यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाना है, हमें क्या करना है सिंगल कोट लगाना है और स्लैश लगाना है इफ यू आर यूजिंग सिंगल कोट. इफ यू आर यूजिंग ट्रिपल कोट मीन्स डबल कोट प्लस सिंगल कोट. तीन बार 3 कोट्स नहीं आते हैं कीबोर्ड पे, तो हम एक बार डबल कोट लगाते हैं और फिर एक बार सिंगल कोट लगाते हैं. देन राइट लाइक हेलो, देन नेक्स्ट लाइन वर्ड एंड देन डबल कोट. ठीक है, लाइक दिस. So this is the way that you can input a string in a computer easily. Okay, now next see numeric values. See, numeric values are like integer, pure integer क्या होते हैं? Pure numbers like 10, 17, 210 whole number कह सकते हो. whole number means the numbers which you will not decimal in the form of decimal. Float is a type which you can define with decimal like 2.24, that is 2.64, 1.34. These are the floating numbers. Complex numbers हमने पढ़े होंगे, याद है 3 + 5i, अभी सुदीप सर ने पढ़ाए होंगे. That is called complex numbers. ठीक है, i की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कुछ होती है ना -1, ऐसे कुछ होती है ना, किसी ने बताई थी उस दिन. -1 होती है. ठीक है, चलो. तो अभी हमने डेसिमल नंबर डिस्कस किया हुआ है, ऑक्टल नंबर डिस्कस किया हुआ है, हेक्साडेसिमल डिस्कस किया हुआ है. हेक्साडेसिमल मैंने बताया था, इस तरीके के नंबर आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर. ठीक है, ऑक्टल नंबर्स इन दैट नंबर्स 8 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स होंगे. डेसिमल नंबर्स में कोई भी डेसिमल नंबर, लेकिन इनको पहचानने का तरीका वही है, अगर बेस इट डिपेंड अपॉन द बेस ऑफ द नंबर. ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म समझते हो ना, हमने लिखा 2/6. ठीक है, हमने लिखा 3/4, दैट इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म. ठीक है, और एक्सपोनेंट फॉर्म देखो e की पावर लिखा जाता है ना, e की पावर 7 ऐसा कुछ लिखा होता है. ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट की कुछ वैल्यू होती है, तो आप पूछेगा, यू कैन टेल यू बेटर. ठीक है, नेक्स्ट बूलियन ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स सभी को पता होगा. ठीक है, क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स, बताओ. ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, टेल मी. ये पता है? अच्छा देखो, मैं कुछ बना रहा हूँ. 5, 4. ये 6 होगा, ये याद है ना, ये नहीं होगा. याद है ये क्लास में वर्क किया होगा. याद है किसी को? याद है नहीं? क्लास में जब हमारा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन द ट्रू विल कम. ठीक है, ऐसा होता है, व्हेन द ट्रू विल कम, दैट मीन्स 4 fingers. false will come, that is 5 fingers. याद है? कितने लोगों को याद है? बहुत सारे लोग करते हैं सब. ठीक है, that is the finger discriminations. ठीक है, 5 characters are there in true, or 4 characters are in true and 5 characters are in false. चलो कोई नहीं.
होता है, कोई बताएगा कि हमने किया है ऐसा। चलो ठीक है, तो ट्रू क्या है, बूलियन मीन्स ट्रू या फिर फॉल्स और ट्रू, ठीक है, मीन्स 0 और 1। ये सिंबल सबने पहचानते हो, वाला सिंबल देखा सभी ने, देखा नहीं देखा, बोलता नहीं है तो कैसे बताएगा। स्पीक, कौन बोला? देखा है, कहाँ देखा है? रिमोट पे देखा है, रिमोट पे, कंप्यूटर स्विच में देखा होगा, पावर बटन होता है वो। तुम 50 पैसे वाली टॉफी खा लेना मेरी तरफ से लेके, ठीक है। पावर बटन होता है ये, वो भी बोला हो, ठीक है, ये पावर बटन होता है। एंड दैट मीन्स इट इज 1 and it is 0. It comes from 0 and 1. It comes from binary numbers. Okay. So now, okay. Special which means nothing, means zero value. ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम जीरो वैल्यूज के नाम देंगे, ठीक है, नन वैल्यू, ठीक है, स्पेशल लेटर्स होते हैं वो। ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम लोग। Operators, basically operators are an operators is a symbol that trigger some actions when applied on identifiers, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे, हमने बताया था, दो ऑपरेंड्स के बीच में वी कैन यूज ऑपरेटर्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हमने बताया भी था अभी, C is equal to A plus B, प्लस इज द ऑपरेटर दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। समझे? आइडेंटिफायर, कुछ आइडेंटिफायर्स के बीच में हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, उनको कंप्यूट करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, हम लोग उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा C is equal to A plus B, तो A B C आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर